ہم انگریزوں کے حق میں فتوا دے رہے ہیں اور جہاد نہیں ہمارے نزدیک صحیح ہے، نہیں تو تمہارا حشر بہت برا کیا جائے گا۔ حسین شیخ الہند مفتی محمود الحسن صاحب دیوبندی علیہ رحمہ بابا دول یہ کہا کرتے تھے، میں بلال کا وارث ہوں، میں عمار کا وارث ہوں، میں سہیب کا وارث ہوں، میری روح میں ان لوگوں کا خون دوڑ رہا ہے۔ انگریز تو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے، انگریز تو مجھے مار کے ختم کر سکتا ہے، انگریز تو مجھے دفن کر سکتا ہے، لیکن میں اپنے فتوے سے مکر نہیں سکتا ہوں، میں اپنے فتوے سے باز نہیں آ سکتا ہوں، میں اپنے فتوے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں۔ نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ انگریز لوہے کا تار گرم کر کے، لوہے کی سلاخیں گرم کر کے آپ کے چمڑے پہ لگاتا تھا، جس سے آپ کا چمڑا اکھڑ جایا کرتا تھا۔ اس طریقے سے آپ کو سزا دی جاتی تھی اور آپ پھر بھی اپنے فتوے سے نہیں مکرے اور اپنے فتوے سے آپ نے رجوع نہیں کیا۔ اس طریقے سے آپ کو سزائیں دی گئی، اس طریقے سے آپ کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ یہ وہ راز تھا جسے میں نے اپنے سینے میں دفن کیا ہوا تھا۔ شیخ الہند مفتی محمود الحسن صاحب دیوبندی علیہ رحمہ کی وفات کے بعد اب تحریک خلافت چل رہی ہے 1936 میں، جسے ان کے سچے جانشین اور سچے وارث مولانا حسین احمد مدنی اب سیراب کر رہے ہیں۔ ان کو ورثے میں یہ چیز ملی تھی کہ وہ دبنا نہیں جانتے تھے، وہ جھکنا نہیں جانتے تھے، وہ ڈرنا نہیں جانتے تھے، وہ جھک کر کے بات نہیں کرنا جانتے تھے۔ تحریک خلافت کو انہوں نے فروغ دیا اور 1936 کے اندر جو تحریک خلافت چلی اور ہندو مسلم اتحاد کی ہوا چلی اور گاندھی جی نے جس میں شرکت کی اور کہا کہ اب انگریزوں کو بھگا کر کے دم دیا جائے اور پوری کوشش شروع کی گئی، اس تحریک خلافت میں حسین احمد مدنی علیہ رحمہ نے کھڑے ہو کر کے فتوا دیا کہ اب انگریزوں کی ملازمت حرام ہے، ترک موالات کا فتوا دیا گیا تھا، اس کی آپ نے حمایت کی اور کہا کہ اب کوئی انگریز کی حکومت نہیں کر سکتا ہے، کوئی ان کی اعانت نہیں کر سکتا ہے، کوئی فوج میں شامل نہیں ہو سکتا ہے، اب ان کے ساتھ بھرتی ہونا حرام ہے، اب ان کی اعانت کرنا حرام ہے۔ آپ کو گرفتار کر کے لاہور میں لایا گیا اور شیخ نے پوچھا کیا حسین احمد مدنی تم نے یہ فتوا دیا ہے؟ 1936 میں آپ نے فرمایا میں نے فتوا دیا ہے، میرے علاوہ کسی نے نہیں دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں شامل ہونا حرام ہے، ان کی حالت حرام ہے۔ محمد علی جوہر انہوں نے آپ کا پیر پکڑ لیا، محمد علی جوہر جوہر نہ بنتا اگر حسین احمد کی صحبت نصیب نہ ہوتی، شوکت علی نہ بنتے اگر حسین احمد کی صحبت نصیب نہ ہوتی، محمد علی جوہر یہ جوہر برادران یا علی برادران کا نام و نشان نہ ہوتا اگر حسین احمد کی صحبت نصیب نہ ہوتی۔ یہی محمد علی جوہر ہیں جنہوں نے جا کر کے برٹش کے اندر کہا تھا کہ ہم غلام ہندوستان میں جانے کے لیے اب تیار نہیں ہیں۔ 14 گھنٹے مرد مجاہد انگریزی میں لگاتار تقریر کرتا تھا اور کہتا تھا یا تو یہی ہندو یا برٹش میں مریں گے، قبر کہیں اور بنے گی، اگر مر گیا برٹش میں تو برٹش میں دفن کر دیجیے گا، لیکن غلام ہندوستان میں جانا مجھے گوارا نہیں۔ جب تک آزاد نہیں ہوگا، جب تک آزاد نہیں ہوگا تب تک ہم ہندوستان جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 14 گھنٹے انگریزی میں یہ مرد مجاہد تقریر کرتا تھا۔ انہوں نے حسین احمد مدنی کا پیر پکڑ لیا اور کہا حضرت اپنا فتوا بدل دیجیے اور کہا حضرت اپنی رائے بدل دیجیے، اگر آپ رائے نہیں بدلتے ہیں انگریز آپ کے خلاف ابھی لکھے گا اور آپ کے لیے بھی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ مولانا نے جھٹک کے فرمایا کیا بولتے ہو، اگر میں نے فتوا بدلا تو میرا ایمان بدل جائے گا، اس لیے میں فتوا بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی حسین احمد مدنی ہے لاہور کے جب تحریک خلافت کانفرنس ہو رہی تھی اور اس خلافت میں آپ کو حصہ لینا تھا، اس خلافت میں آپ جانے والے تھے اور شرکت کرنے والے تھے، آپ نے جب قدم بڑھانا چاہا تو آپ کو اطلاع دی گئی کہ وہاں پہ آپ کو پھانسی کا آرڈر دے دیا گیا ہے، وہاں پہ توپیں تیار ہیں، وہاں پہ گولیاں تیار ہیں، وہاں پہ فورس لگی ہوئی ہے اور سب کو یقین تھا کہ اتنے بڑے مجمع میں آج حسین احمد مدنی آنے والا نہیں ہے کیونکہ پھانسی کا آرڈر ہو چکا ہے، آج حسین احمد مدنی آنے والا نہیں ہے کیونکہ گولیاں لے کر کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آج حسین احمد مدنی آنے والا نہیں ہے کیونکہ میزائلیں نصب کر دی گئی ہیں، لیکن مارے حسین احمد مدنی آپ کی جرأت کو سلام، آپ کی بے باکی کو سلام، آپ کے جرأت مندانہ اور رنجانہ اسلام کو سلام، جرأت مندانہ اسلام کو سلام۔
हुसैन अहमद मदनी आए कफन हाथ में लेकर के और कफन को लहरा करके स्टेज पे खड़े हुए और ये जुमला कहा, लिए फिरती है बुलबुल चोट में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोट में गुल। अंग्रेजों के तोपों को, अंग्रेजों की गोलियों को, अंग्रेजों की बंदूकों को आपने बुलबुल से तस्वीर दिया और उनकी गोलियों को, उनके छर्रे को आपने गुल यानी फूल से तस्वीर दिया और ये शेर कहा, लिए फिरती है बुलबुल चोट में गुल। लिखने वाले लिखते हैं, मुअर्रिखीन लिखते हैं, जब आपने जुमला कहा और जब आपने ये बात कही तो फिर आधे घंटे तक मजमा नारा लगाता रहा, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर से पूरा लाहौर और कराची गूंजता रहा, क्योंकि 9 लाख का मजमा था, कोई मामूली मजमा नहीं था। नारों ने हिला करके रख दिया और जिनके हाथों में बंदूकें थी वो हिल करके रह गए और जो निशाने लेके खड़े हुए थे वो काब करके रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक गोली चला देता। आधे घंटे बाद आपने दूसरा शेर पढ़ा, लिए फिरती है बुलबुल चोट में गुल, शहीद नाज की तुरबत कहाँ है, शहीद नाज की तुरबत कहाँ है, मैं शहीद होने आया हूँ, मेरी कब्र कहाँ है। बुलबुल पूछ रही है, गोलियां पूछ रही है, बंदूकें पूछ रही है, तोपें पूछ रही है, अरे मारो न चलाओ अगर हिम्मत है, चलाओ न दिखाओ। और अल्लाह के वादे से मुजाहिद को यकीन है, ये फतह मुबी है। और तूफान बला सर से गुजरते ही रहे हैं, जख्मी है मगर आज भी सरहम तो नहीं है। तूफान बला सर से गुजरते ही रहे हैं, जख्मी है मगर आज भी सरहम तो नहीं है। ये हुसैन अहमद मदनी का नारा था जो इन्होंने लगाया और आधे घंटे तक जोश में लोग नारा मारते रहे। और उसके बाद आपने कहा, खिलौना समझ कर न बर्बाद करना, खिलौना समझ कर न बर्बाद करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। खिलौना समझ कर न बर्बाद करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फरंगी की फौजों में हुर्मत के फतवे सरेदार चढ़कर बिकाए हुए हैं। फरंगी की फौजों में हुर्मत के फतवे सरेदार चढ़कर के बिकाए हुए हैं। और शजर आजादी का खो दे के हमने सीखा, शजर आजादी का खो दे के हमने सीखा कि धनुष के पकने को आए हुए हैं। आपने फरमाया किसी के अंदर हिम्मत है तो गोली चला करके दिखाएं। हुसैन अहमद का सीना हाजिर है, कोई गोली नहीं चला सका। नतीजा ये निकला कि 1957 में आपकी देवबंद में वफात होती है और आज भी है आपका कब्रिस्तान है। उसके बाद ये तारीख आगे चलती है, गांधी जी की तारीख फिर शुरू होती है। 1930 के अंदर गांधी जी आए कहाँ से हैं? गांधी जी तो पूर्वी अफ्रीका में चले गए थे और वहाँ पे रह रहे थे और गांधी जी वहाँ वकालत कर रहे थे। और वकालत के दरमियान इन्होंने वहाँ के हिंदुस्तानी बाशिंदों की लड़ाई लड़ी थी और वहाँ पे इन्होंने बहुत जम करके और बड़ी खामोशी के साथ एहतजाज किया था। इसके नतीजे में उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी थी। वहाँ पे जो हिंदुस्तानियों के साथ दोहरा सलूक किया जा रहा था और दोहरा रवैया इख्तियार किया जा रहा था, उसके नतीजे में गांधी जी को जेल डाला गया था। गांधी जी ने बहुत जबरदस्त एहतजाज जताया था। इसकी असर को देख करके गांधी जी जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये नौजवान बड़ा होनहार है और बड़े काम का है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को अगर फरोग देना है, अगर बढ़ावा देना है, अगर इसको और आगे लेकर के चलना है तो फिर करना क्या पड़ेगा कि इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा इस नौजवान को। यही गांधी जी है। जब जामिया मिल्लिया बना था, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जामिया मिल्लिया की बुनियाद रखने गए और बुनियाद रख करके जब उन्होंने उसके नाम का ऐलान किया और कहा कि ये जामिया मिल्लिया है, तो ये खड़े हुए गांधी जी और खड़े होकर के कहा, इसमें इस्लामिया का लफ्ज बढ़ा दीजिए। मैं कहता हूँ कि इस्लामिया का लफ्ज बढ़ा दीजिए। हिंदुओं को कोई एतराज नहीं है। इनका जहन ऐसा था, इनका मिजाज इतना सिकुलर था। बाद में जब पता लगाया गया तो पता चला कि यही गांधी जी है जो नौजवान बीच में खड़ा हुआ था और कह रहा था कि इसमें मिल्लिया का लफ्ज बढ़ा दीजिए इस्लामिया का। वो गांधी जी है। इन गांधी जी को फिर प्रमोट किया गया, इनको आगे बढ़ाया गया। तारीख खिलाफत के जो चंदे थे उसे ले करके इनको दौड़ाया गया पूरी हिंदुस्तान में और पहचान बनाई गई। और इधर रोजाना की अंग्रेजों की खुराफात, रोजाना की अंग्रेजों की कार्रवाइयाँ, कहीं आटे में वो सुअर की चर्बी मिलाते, कहीं आटे में वो सुअर की हड्डी पीस करके मिला देते, कहीं आटे में वो गाय का सत मिला देते, कहीं किसी पानी में कुएं में ला करके गाय और सुअर दोनों के गोश्त को मिला देते। न हिंदुओं के लिए चीज रह जाती, न मुसलमानों के लिए रह जाती। नतीजा ये निकला कि हिंदू मुसलमान एकजुट होने शुरू हुए और इतिहास का जोर बढ़ता रहा। और जो मुसलमान फौजी अंग्रेजों की गुलामी में थे या कह लीजिए कि उनके फौज में थे, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया
कि अब हम इस फौज में नहीं रहेंगे, और उन्होंने बगावत का भसूर फूंक दिया, और नतीजा ये निकला कि फिर उनको भी शहीद किया गया और उनको भी मारा गया, और ये सिलसिला चलता रहा। 1930 के अंदर गांधी जी ने एक नमक के खिलाफ एहतजाज शुरू किया, जो कई किलोमीटर लंबी एहतजाजी रैली में तब्दील हुआ, और गांधी जी ने कहा कि ये नमक की जो चुंगी ली जा रही है और पानी पे जो लगान वसूल की जा रही है, इसे हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, इसे हम कबूल करने वाले नहीं हैं। नतीजा ये निकला कि न मालूम कितने लोगों को गिरफ्तार होना पड़ा, खुद गांधी जी भी गिरफ्तार हुए। एक मरतबा जनूबी अफ्रीका में जेल की हवा खाई, फिर हिंदुस्तान में आकर के गांधी जी ने यहाँ भी जेल की हवा खाई, फिर लाहौर में गांधी जी गए, वहाँ पे जब एहतजाज किया और गांधी जी को गिरफ्तार करने लगे, तो गांधी जी ने कहा कि लोगों ने कहा आपकी तहरीक को आगे कौन चलाएगा? गांधी जी ने कहा मेरी तहरीक को चलाने के लिए आज भी बहुत से लोग मौजूद हैं, और आप देखिएगा कितने लोग सपोर्ट करते हैं। नतीजा ये निकला कि जितने खान और पठान थे सब आगे आ गए, और वहाँ उन्होंने कहा कि इस तारीख को हम बढ़ावा देते हैं, तारीख रुकने का नाम नहीं ले सकती। और गांधी जी के सपोर्ट में खान अब्दुल गफ्फार खान आए, जो गांधी जी के बाएं हाथ थे, और जिन्होंने गांधी जी से अज़म किया था और यह वादा लिया था कि कुछ भी हो जाए हथियार नहीं उठाएंगे, कुछ भी हो जाए गोली नहीं चलाएंगे, खामोश एहतजाज करते रहेंगे, खामोश कोशिश करते रहेंगे, और खामोश तौर से अपना एहतजाज कराते रहेंगे, और हिंदुस्तान से इन लोगों को भगा करके दम लेंगे। नतीजा ये निकला कि गांधी जी तो वहाँ से निकल गए, लेकिन इन पठानों ने जब दौड़ाया अंग्रेजों को तो सब भाग खड़े हुए, फिर जहाज फिर मोर्चा वो लगा हुआ रहा, और लोग खड़े रहे, आगे आगे बच्चे हैं, पीछे पीछे पठानों का पूरा टोला है, और उसमें बीच में खान अब्दुल गफ्फार खान कमांडरी कर रहे हैं। गांधी जी दूसरी जगह जा चुके हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान से वहाँ के अर्जेंट ने पूछा कि आप ये बताइए, जेवर पठानों का जेवर तो असलहा हुआ करता है, वो बगैर जेवर के यानी बगैर असलहे के तो चलते नहीं है, और बगैर असलहे के रहते नहीं है, आपको क्या हो गया है? आप बीच में खड़े हैं, आपके पास कोई जेवर नहीं है। इन्होंने कहा हमने गांधी जी से वादा लिया है कि हम बंदूक अब नहीं उठाएंगे, हम अब तलवार नहीं चलाएंगे, इस वादा को मैं पूरा कर रहा हूँ। अगर तुम्हें गोली चलानी है तो गोली चला दो, लेकिन हम बंदूक नहीं चलाने के लिए तैयार हैं, हम हाथ उठा देंगे, आपको गोली मारना है मारो, लेकिन मैं हटने वाला नहीं हूँ। नतीजा ये निकला कि उसने ये कह करके अपनी बंदूक फेंक दी कि हम गोली नहीं चलाते हैं। फिर दूसरी टोली लाई गई और उससे फायर करवाया गया, जिसके नतीजे में 250 से ज्यादा लोग वहाँ पे शहीद किए गए। खान अब्दुल गफ्फार खान को जब हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो यहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। ये वहाँ के दूसरे गांधी कहे जाते हैं, सरहदी इलाके के इनको गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने गांधी के साथ मिलकर के ये सपोर्ट दिया था। फिर 1935 में यहाँ का दस्तूर मुरतब हुआ और यहाँ का आईन मुरतब हुआ और अंग्रेजों की हुकूमत चलती रही, लेकिन यहाँ के लोग चैन से बैठने के लिए तैयार नहीं। भगत सिंह मैदान में है। 1921 में भगत सिंह ने अपना स्कूल छोड़ दिया, कहा स्कूल में पढ़ने का कोई नतीजा नहीं, इसलिए कि अंग्रेज चलता चला जा रहा है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये अंग्रेज हमारे साथ छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक कि उनकी नाक पे बम न कर दिया जाए। भगत सिंह ने कारनामा ये अंजाम दिया कि क्या करके लाहौर में बम फोड़ दिया। नतीजा ये निकला कि भगत सिंह और उनके दो साथी गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमा चला, 2-3 सालों तक जेल में रहे, फिर छूट करके आए तो दिल्ली के अंदर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का इजलास चल रहा था अंग्रेजों का। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अंग्रेजों का इजलास चल रहा था। भगत सिंह ने वहाँ भी आकर के बम फोड़ दिया, गिरफ्तार फिर कर लिए गए। अंग्रेज के सामने लाया गया। जज ने भगत सिंह से पूछा, जुमले सुनने के लायक है। जज ने भगत सिंह से पूछा, जरा ये बताओ कि मुगलों ने 800 साल तक हुकूमत की, इन पठानों ने तुम पे 800 साल तक हुकूमत की, तुमने इनके खिलाफ जिहाद नहीं किया। इन पठानों ने तुम पे 800 साल तक राज किया है। इन पठानों से तुमने एक मरतबा भी जिहाद नहीं किया, तुम्हारा एक आदमी भी इनके खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। 800 साल तक इनकी गुलामी तुम बर्दाश्त करते रहे। जो आज हमारे पीएम साहब कहते हैं कि 800 साल या 1100 साल की गुलामी से आजादी मिल गई है, जरा वो भी कान खोल करके सुने। अगर उनका कोई कुत्ता यहाँ बैठा होगा तो भी मेरी बात पहुँचाने की कोशिश करेगा। भगत सिंह का जुमला सुना जाए।